اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے فخر امام اور آج ہم اسٹارٹ کریں گے انٹروڈکشن ٹو لاجک. تو اس کے لیے ہمارے پاس جو ایک بہترین اور آسان کتاب ہے وہ ہے ٹیکسٹ بک آف ڈیڈکٹیو لاجک بائی کرامت حسین. تو اس بک کا اسٹارٹ ہوتا ہے جی وٹ از دا سبجیکٹ میٹر آف لاجک, ڈیفینیشن, اسکوپ اینڈ یوز آف لاجک. یہ ہے جی ہمارا چیپٹر 1 اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو اس میں بتایا گیا کہ تقریباً تمام سائنسز, باٹنی, زوالوجی, کیمسٹری, فزکس, ایون کہ سوشل سائنسز, سائیکالوجی, سوشیولوجی, یہ تمام they are all dependent on logic. Logic is basically the root of all the sciences and social sciences, and they are very fond to add their name with the logic. اور اس کو ہم آگے تھوڑا سا ڈیٹیل سے پڑھیں گے. تو یہاں پہ ہمیں بتایا گیا کہ what does logic study. لاجک میں ہم کیا پڑھتے ہیں, لاجک کا کیا فنکشن ہے. تو اس کے لیے تو وہی سب سے پہلے اسٹارٹ کیا ہے جی ایٹمالوجی لاجک کی کیا ہے جی. یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ہمارے لاسٹ لیکچر میں. دا لاجک, دا ورڈ لاجک derives from the Greek word logos, which means word and thought. Logos is the Greek word which is the source of English word logic. ٹھیک, تو اس کا مطلب ہے کہ لاجک میں ہم تھاٹ کو بھی پڑھیں گے اور ورڈ کو بھی پڑھیں گے, یعنی کہ لاجک ڈیلز ود تھاٹ ایز ویل ایز ود ورڈ وچ مینس لینگویج. اب لاجک کے دو پارٹ ہو گئے یہاں پہ. یہ لاجک میں ہم کہہ لیں کہ لاجک میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. پہلی چیز کیا ہے, آپ کی لینگویج. کیوں, کوئی بھی تھاٹ ہوگی آپ وداؤٹ لینگویج اس کو نہ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, نہ ایکسپریس کر سکتے ہیں, اور نہ اس کو ایویلویٹ کر سکتے ہیں. تو یہ دونوں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اب ہم آتے ہیں جی ڈیفینیشن آف لاجک. لاجک کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ لاجک کی کئی ڈیفینیشنس ہیں. فار ایگزامپل, لاجک از دا سائنس آف ویلڈ ریزننگ, لاجک از دا سائنس ویلڈ تھاٹ. تو یہاں پر جو بڑی کمپریہنسو اور ایک شاندار ڈیٹیل دی ہوئی ہے وہ ہے جی لاجک از دا سائنس آف دا لاز آف ویلڈ تھاٹ. ٹھیک, لاجک ایک ایسی سائنس ہے جس میں ہم تھاٹ کی ویلیڈیٹی کے لیے جو ریکوائرڈ لاز ہیں ان کی ہم اسٹڈی کرتے ہیں. یعنی وہ تمام قوانین جو ضروری ہیں کسی بھی تھاٹ کی ویلیڈیٹی کو چیک کرنے کے لیے, اس کو ایویلویٹ کرنے کے لیے, اس کو اسیس کرنے کے لیے, اس کو جج کرنے کے لیے لاجک ان سے ڈیل کرتی ہے. اب سائنس کا کیا مطلب ہے؟ بہت سارے اسٹوڈنٹس سائنس کے ایون کے میٹرک اور ایف ایس سی کے بعد بھی سائنس کی ڈیفینیشن نہیں بتا سکتے. تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں, آپ بھی سوچیں. اور آپ میں سے بہت سارے اسٹوڈنٹس سائنس کو پڑھ کے آئے ہوں گے. وٹ از سائنس, وٹ از دا ڈیفینیشن آف سائنس. سائنس از اے سسٹمیٹک, ایکوریٹ اینڈ کمپلیٹ نالج آف سم سبجیکٹ میٹر. کسی بھی چیز پر, کسی بھی سبجیکٹ پر, کسی بھی میٹر پر کوئی بھی ایسے کائنڈ آف نالج جو کمپلیٹ ہو, اس کے صرف کوئی پارٹ نہ بتاتا ہو بلکہ کمپلیٹ اس کو گراسپ کرتا ہو اور وہ ایکوریٹ بھی ہو, تو ایسا نالج سائنس کہلائے گا. All science is knowledge, but all knowledge is not science. اب اس کے بعد جی there are two kinds of sciences, natural science and
normative science. Natural science deals with things as they are. Normative science deals with things as they should be, as they ought to be. नेचुरल साइंस, वो तमाम सब्जेक्ट्स नेचुरल साइंस में आएंगे जो चीज़ों को हमें जैसा है वैसा बताते हैं. फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी. तो ये तमाम जो साइंसेस हैं ये हमें कोई भी नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, तो इसमें वो एज इट इज़ चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, उनको एज इट इज़ डील करते हैं जैसा कि वो होती हैं, अपनी तरफ से उसमें कुछ ऐड नहीं करते. ठीक. एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी हमेशा ऐसे ही बिहेव करेगी, ऐसे ही स्टार्स के बारे में बताएगी जैसा वो है, और वैसी उसकी कोशिश होगी, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बॉटनी हो, जूलॉजी हो, कोई भी इस तरह की नेचुरल साइंस होगी उसको पॉजिटिव साइंस भी कहते हैं. सेकंड टाइप ऑफ जो साइंस है वो है जी नॉर्मेटिव साइंस. इसको रेगुलेटिव साइंस भी कहते हैं. नॉर्मेटिव साइंस डील्स विद थिंग्स as they should be, as they ought to be. ठीक. इसमें एथिक्स, एस्थेटिक्स, ये सारी क्या है, ये नॉर्मेटिव साइंस है. लॉजिक इज आल्सो अ नॉर्मेटिव साइंस. अब एथिक्स कैसे नॉर्मेटिव साइंस है? फॉर एग्जांपल एथिक्स हमने पढ़ा है, एथिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ नॉर्म्स, स्टडी ऑफ मॉरल वैल्यूज. ठीक. अब फॉर एग्जांपल एथिक्स हमें बताती है कि हमें अपने पेरेंट्स के साथ तहजीब के दायरे में बात करनी चाहिए, अदब से पेश आना चाहिए, बच्चों के साथ शफकत करनी चाहिए. लेकिन हम में से कोई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ एहतराम से बात नहीं करते या बच्चों के साथ शफकत से पेश नहीं आते. और दूसरी तरह भी वो उसके अपोजिट अगेंस्ट भी बिहेव कर सकते हैं. लेकिन नॉर्मेटिव साइंस ये कहती है कि एज दे शुड बी, इनको इस तरह से होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए तो अच्छा है. नेचुरल साइंसेज में आप ये नहीं कर सकते कि आप नेचुरल लॉज को वायलेट कर लें. तो ये अभी हम आगे इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे. तो ये बेसिक इनका जो फर्क है ये अभी थोड़ा सा डिटेल में आएगा. लॉजिक इज आल्सो नॉर्मेटिव साइंस. इट स्टडीज थॉट एज शुड बी, नॉट एज इट इज. क्यों? हम से बहुत सारे लोग कभी कभी जो सोचते हैं उसमें गलती कर जाते हैं, उसमें लॉजिकल एरर आ जाता है, कोई फैलेसी होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, मिस जज कर सकते हैं, मिस कॉम्प्रिहेंशन हो सकती है. लॉजिक हमें बताता है कि आपने ऐसे सोचना है, सही सोचना है कि ये रूल्स हैं, ये रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर आप इनको फुलफिल करेंगे, इन रिक्वायरमेंट्स को मीट करेंगे तो ही आप बहुत चांसेस ज़्यादा है कि आप सही सोचें. तो ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, फंडामेंटल लॉज ऑफ थॉट है, ये भी आगे जाके हम डिटेल से पढ़ेंगे. लॉजिक डज नॉट टेल अस हाउ वी थिंक व्हाइल इट गाइड्स अस हाउ वी शुड थिंक. लॉजिक हमें ये नहीं बताती कि सोचने का प्रोसेस कैसे, उसमें माइंड यूज होता है, उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, फिर जाके आप सोचते हैं. नो, लॉजिक ये बताता है कि हाउ वी शुड थिंक, हमें सोचना कैसे चाहिए. ठीक. इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है जी लॉज. लॉज आर जनरल और यूनिवर्सल ट्रूथ्स. लॉज क्या होते हैं? जनरल और यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं. यानी कि कोई भी ऐसी स्टेटमेंट, कोई भी ऐसा फैक्ट जो हमेशा सेम उसका रिजल्ट हो, सेम परफॉर्म करे, उसमें टाइम और स्पेस का इन्वॉल्वमेंट ना हो और उसमें कंसिस्टेंसी हो, तो वो क्या होगा, वो लॉ होगा. लॉज आर जनरल और यूनिवर्सल ट्रूथ्स. देयर आर 3 काइंड्स ऑफ लॉज. 3 तरह के लॉज होते हैं: पॉलिटिकल लॉज, नेचुरल लॉज
and normative laws. ठीक, political laws are commands issued by some superior authority. They can be changed as well as violated. Political laws क्या होते हैं? हमारे मुल्क में कौन कौन से इदारे हैं जो लेजिस्लेशन करते हैं, कानून साजी करते हैं? तो उसमें सेनेट है, नेशनल असेंबली है, उसमें प्रेसिडेंट आते हैं अपने प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के थ्रू, वो भी लॉ इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। थर्ड, हमारे पास प्रोविंशियल असेंबलीज हैं। ठीक, तो ये वो इदारे हैं। तो पॉलिटिकल लॉज आर कमांड्स issued by some superior authority. They can be changed as well as violated. For example, रेड सिग्नल पे रुकना चाहिए, ये कानून है, हम नहीं रुकते, हम उसको वायलेट कर सकते हैं। चोरी नहीं करनी चाहिए, कानून है, कुछ लोग फिर भी बाज नहीं आते। और भी बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो कि पॉलिटिकल लॉज हैं, लेकिन आप उनको वायलेट कर सकते हैं और अक्सर वो चेंज भी होते रहते हैं, यानी कि हमेशा वो सेम नहीं रहते, हमेशा वो परमानेंट नहीं रहते, उनमें रद्द-बदल होता रहता है। Second type of laws are natural laws. Natural laws states what is. Natural laws हमेशा ये बताते हैं क्या है, जो होता है, जो हकीकत होती है, वही natural law होता है। They can neither be changed nor violated. न तो आप इनको चेंज कर सकते हैं और ना ही आप इनको वायलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चीज़ें बुलंदी से गिराए तो उनको ज़मीन की तरफ आती हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कह लें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह लें। ठीक, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम चाहें और चीज़ों को गिराएं और वो नीचे ना ऊपर चली जाएं या वहीं पर रुकी रहें, ज़मीन की तरफ ना आए। इस तरह बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो नेचुरल लॉज कहलाते हैं। आप उनको चेंज भी नहीं कर सकते, आप उनको वायलेट भी नहीं कर सकते। थर्ड टाइप ऑफ लॉज आर नॉर्मेटिव लॉज, स्टेट्स व्हाट ऑट टू बी, व्हाट शुड बी। तो थर्ड हमारे पास क्या है? थर्ड टाइप हमारे पास है नॉर्मेटिव लॉज। नॉर्मेटिव लॉज ऐसी काइंड ऑफ लॉज है जिसको आप क्या है, आप उसको वायलेट तो कर सकते हैं लेकिन आप उसको चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एथिकल नॉर्म्स है, तो आप उनको चेंज नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि ऊंचा बोलना, ऊंचा बात करना ये बदतमीजी नहीं है, या मिसबिहेव करना ये भी बदतमीजी नहीं है। तो एथिकल लॉज को आप चेंज नहीं कर सकते, आप उनको वायलेट कर सकते हैं। आप छोटे बच्चे पे तशद्दुद करें या आप उसके साथ सख्ती से पेश आए, तो आप ये नहीं कह सकते कि बच्चों के साथ सख्ती से पेश आना अखलाकियात का कानून है या एक अखलाकी रवैया है, ऐसा नहीं है। A science does not deal with its facts for the sake of the facts themselves, for the sake of the laws which govern those facts. कोई भी साइंस उन जनरल लॉज को इस तरह से डील करती है, कोई भी साइंस फैक्ट्स के साथ इस तरह से डील करती है कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो नेचुरल फिनोमिना में चीज़ों को कंट्रोल करती हैं, या नेचर किस तरह से बिहेव करती है, नेचर किस तरह से परफॉर्म करती है। आप जब उस पैटर्न को अंडरस्टैंड करते हैं तो आप उसमें से कुछ लॉज डिड्यूस कर लेते हैं और वो लॉज आपके नेचुरल लॉज कहलाते हैं। A science is interested in general laws which it deduces from its facts. Science of logic is so much concerned with the general laws of valid thought. तो साइंस क्या है? साइंस उन जनरल लॉज में इंटरेस्टेड होती है जो उन फैक्ट्स को गवर्न करते हैं, जिसकी वजह से चीज़ें ऐसा बिहेव करती हैं। उसका फ़ायदा क्या होता है? जब आप उन फैक्ट्स को रिड्यूस कर लेते हैं, आप उनको लॉज बना देते हैं, तो आप चीज़ों को बेटर
انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ایون کہ آپ ان کو پریڈکٹ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، آپ اس کو پہلے سے پیشن گوئی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو لاجک ہے وہ بھی کنسرنڈ ہے ان لاز کے ساتھ جو ویلڈ تھاٹ کے لیے ریکوائرڈ ہے۔ اگر آپ سوچتے ہیں، آپ کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں جس میں آپ اپنے تھاٹ کو ایویلویٹ کرتے ہیں، اسیس کرتے ہیں یا اس کو چیک کرتے ہیں، تو اس کے لیے جو لاز ریکوائرڈ ہوں گے لاجک ان کے ساتھ ڈیل کرتی ہے۔ نیکسٹ ہم اسٹارٹ کریں گے ویلیڈیٹی سے کہ ویلیڈیٹی کیا ہوتا ہے۔ تھینک یو۔